السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ حضرات، پچھلے جمعے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اس پر بیان کیا تھا۔ وہ آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا شان نزول بیان کیا تھا کہ علماء کرام نے لکھا ہے، دو شان نزول بیان کیے تھے کہ پہلا قول علماء کرام کا یہ ہے، مفسرین کا، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، ان کا قول یہ ہے کہ یہ منافقوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کہ منافقوں کو حکم دیا گیا کہ جس طریقے سے تم ظاہری طور پر مسلمانوں والا حلیہ، مسلمانوں والا لباس، مسلمانوں والے عمل کرتے ہو، اسی طرح دل سے بھی تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو اس کے جو اولین مخاطب ہے وہ منافقین ہیں۔ اب یہ نقطہ ایک سمجھنے جیسا جو علماء کرام نے اور اس کی تصریح کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی منافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ کیونکہ منافقت جو ہے اس کا دار و مدار دل پر ہے۔ کہ انسان اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو، مسلمانوں کے ساتھ جہاد بھی کر رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو، داڑھی بھی اس نے رکھی ہو، مسلمانوں والا لباس بھی پہنا ہو، لیکن دل سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ جو منافقت ہے اس کا کانٹیکٹ اور تعلق دل کے ساتھ، اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب قیامت تک کسی کا نام لے کر کے آپ اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافقت کا دار و مدار تو دل پر ہے، کہ دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا، اس پر تو سارا دار و مدار ہے۔ اگر دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا تو وہ مسلمان، اور اگر دل سے نہیں لایا تو وہ منافق ہے۔ تو اب دل میں اس کے کیا بات ہے، اس کی نیتیں کیا ہے، اس کے دل میں ارادے کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو ساری بات دل کی ہے۔ اب دل کو تو آپ اور ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیارات عطا فرمائے تھے کہ آپ لوگوں کے دل کے حال بھی جان لیتے تھے۔ اسی لیے آج کے دور میں کسی عمل پر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل منافقوں والا ہے اور اس آدمی نے یہ منافقوں والا عمل کیا، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نام لے کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی منافق ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا سیریس ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا کہ اب قیامت تک کسی آدمی کا نام لے کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، منافقوں کی آقا علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی ہے، اس میں سے ایک نشانی آقا علیہ السلام نے یہ بیان کی، بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے اس میں جھوٹ بات مکس کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر منافقوں کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں وہ خیانت کرے گا، یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ تو آج اگر کوئی بندہ ایسے کوئی عمل کرے کہ جو منافقوں والے عمل ہے، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے منافقوں والے عمل کیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ منافق ہے۔
इस पर अगर पुरानी किताबें यहाँ पर हम उठाए, जो आज से 700-800 साल पहले की जो किताबें हैं, जो हदीस की शरह में और कुरान पाक की तफसीर में जो लिखी गई, जैसे अल्लामा इब्न कसीर ने लिखी, इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने, इसी तरह हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने, ये सारे यूँ समझे 400, 500, 700 साल पुराने बुजुर्ग हैं। उन बुजुर्गों ने इस टॉपिक पर बहुत बड़ी बड़ी बहसें की है अपनी अपनी किताबों में। कई कई सफ़ों तक ये बहसें वो लेकर के गए, क्योंकि ये मामला इतना सीरियस है। इसीलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। किसी भी मुसलमान को काफिर कहना, मुनाफिक कहना या उसको बदअकीदा या गुमराह कहना, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आदमी किसी को भी काफिर कह दे या किसी को भी बदअकीदा कह दे, क्योंकि ये बात बहुत खतरनाक है। हदीस पाक में आता है कि एक जंग के मौके पर एक सहाबी रसूल, उनका दुश्मन के साथ मामला हुआ, लड़ाई हुई जंग की हालत में। अब उस सहाबी रसूल ने क्या किया, जंग की हालत में उस बंदे को पछाड़ दिया। मुकाबला हुआ आपस में और उसमें मुसलमान सहाबी उस पर भारी हुए और उन्होंने उनको पछाड़ दिया। अब जब उनको पछाड़ दिया, हाथ में तलवार थी। अब तलवार लेकर के उस काफिर का सर कलम करने ही वाले थे, उसकी गर्दन उड़ाने ही वाले थे, तब उस बंदे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसने कलमा पढ़ लिया, फिर भी उस सहाबी ने उसकी गर्दन उड़ा दी। अब यह सारा मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई, आपने उस सहाबी को बुलाया और बुला करके आपने जलाल के आलम में पूछा कि तुमने उस आदमी को क्यों कत्ल किया। उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो तो मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहा था और मेरे सामने ही वो था, और मैंने क्या किया कि उसको पछाड़ दिया और मैं उसको कत्ल करने ही वाला था। तो उसने क्या कि मौत की खौफ की वजह से उसने कलमा पढ़ लिया, बल्कि उसने दिल से कलमा नहीं पढ़ा था, अपनी जान बचाने के लिए उसने कलमा पढ़ लिया। अब जब उस सहाबी का ये जवाब बज़ाहिर तो इसी तरह मालूम होता है कि उसने जान बचाने के लिए ही कलमा पढ़ा था, हालात भी ऐसे ही थे, वरना अगर वो दिल से मुसलमान होता तो फिर मुसलमानों के खिलाफ जंग क्यों करता। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वो सहाबी ने जो काम किया वो दुरुस्त किया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने तो अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ लिया, दिल से उसने कलमा नहीं पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इतने जलाल में आए कि आपके रुखसार पर आपका जलाल देखने में आ रहा था। इतने आप जलाल में आकर उस सहाबी से फरमाने लगे कि मेरे सहाबी, मुझे बता, तू ये कह रहा है कि उसने अपने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा, दिल से नहीं पढ़ा। ए मेरे सहाबी, बता, क्या तूने उसका दिल चीर करके देख लिया था? बता, क्या उसने उसका दिल चीर करके तूने देख लिया था कि इसने दिल से कलमा पढ़ा या दिल से नहीं पढ़ा? उस वक्त सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर बहुत जलाल में थे, वरना आका अलैहिस्सलाम बहुत कम मर्तबा इतने जलाल में आते थे। आप इतना गुस्सा और जलाल आपका नहीं होता था, बल्कि बहुत सीरियस बात होती तभी आका अलैहिस्सलाम को जलाल आता। उस वक्त सहाबा फरमाते कि आका अलैहिस्सलाम का जलाल हमें देखकर हमारे दिलों पर हेबत तारी हो गई, इतना जलाल आका अलैहिस्सलाम का था। तुमने उसका दिल चीर करके देख लिया कि उसने दिल से कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो हजरत, ये सहाबा के दौर में भी सहाबा एहतियात करते थे और हुजूर ने यही तालीम दी थी सहाबा को, और सहाबा को जब यही तालीम दी, सहाबा भी एहतियात किया करते थे। तो आज आपको और हमें भी एहतियात करनी चाहिए। किसी भी आदमी को छोटी छोटी बात पर मुनाफिक कह देना, काफिर कह देना, गुमराह कह देना, बदअकीदा कह देना, बदअकीदा में चाहे वहाबी कहे, देवबंदी कहे, शिया कहे, कुछ भी कहे, तो सारे बदअकीदा है। तो किसी भी आदमी को सुन्नियत से खारिज करके बदअकीदा कह देना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उसके ईमान की बात है। इसीलिए इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो ये जो आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इसके अव्वलीन मुखातिब तो वो मुनाफिक थे जो हुजूर के दौर में थे, और दूसरे जो उसके मुखातिबिन है वो मुफस्सिरीन ने फरमाया है तो अब्दुल्ला इब्न सलाम और उनके साथी। जो वाक़या मैंने तफसील से बयान किया था, वो वाक़या पूरा रिपीट नहीं करूँगा, जहाँ हमारी बात रुकी थी वहीं से आगे बात करेंगे। वो वाक़या यहाँ रुका था आपका और हमारा कि अब्दुल्ला इब्न सलाम और उनके साथियों ने ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध और इसी तरह हफ्ते के दिन काम करना, ये 3 काम उन्होंने छोड़ दिए।
कि हम बरसों से यहूदियत में रहे हैं, हमारी जवानी, हमारा बचपन, हमारे आधेड़ उम्र की ज़िंदगी, यहाँ तक हम यहूदियत में रहे हैं और इस रस्मों पर हम अमल करते चले आ रहे हैं। और अब इस्लाम को इस बात का पाबंद नहीं करता कि तुम ज़रूर ब ज़रूर ऊँट का गोश्त खाओ या ऊँट का दूध पियो या हफ्ते के दिन आप कारोबार और बिजनेस करो। इस्लाम कोई पाबंद नहीं करता। जब इस्लाम पाबंद नहीं करता तो हम क्या करते हैं कि हम ऊँट का गोश्त नहीं खाते। इस्लाम कौन सा कह रहा है कि तुम पर ऊँट का गोश्त खाना फ़र्ज़ है। अब अगर ऊँट का गोश्त नहीं खाएंगे तो इस्लाम के जो उसूल है, जो शरीयत है, वो शरीयत का एक भी नियम, एक भी उसूल नहीं टूटता। इसी तरह ऊँट का दूध नहीं पीते। शरीयत कौन सी पाबंद कर रही कि अब ज़रूर तुम्हें ऊँट का दूध पीना ही पड़ेगा। शरीयत जब पाबंद नहीं कर रही है, हम भी नहीं पीते। इसी तरह हफ्ते के दिन के बारे में, शनिवार के दिन के बारे में, उस दिन हम काम पे नहीं जाते। आज हमारे यहाँ भी होता है, किसी के बुधवार के दिन छुट्टी होती है, किसी के रविवार के दिन छुट्टी होती है, वो उस दिन काम पे नहीं जाते। तो शरीयत कौन सा पाबंद करती है कि आप जरूर जाओ? कोई पाबंद नहीं करती शरीयत। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि ये सारे काम हम न करें, ताकि इस्लाम के खिलाफ तो ये है नहीं। और यहूदियत की जो रस्म बरसों से जो चली आ रही है और हमने जो बचपन, जवानी, लड़कपन, ये सारा अरसा जो यहूदियत में गुजारा है और इस रस्मों पर अमल किया है, वो रस्म भी बरकरार रह जाए। इसीलिए उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न सलाम और उनके जो साथी थे उन तमाम को बुला करके इस बात का पाबंद किया कि और कोई ऊँट का गोश्त खाए या ना खाए उस पर लाजिम नहीं है, कोई ऊँट का दूध पिए या ना पिए उन पर लाजिम नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में यहूदियत की रस्म का पास और लिहाज था, तुमने यहूदियत को रस्म को कायम करने के लिए ये अमल किया, इसलिए तुम पर अब ज़रूरी है कि तुम ऊँट का गोश्त खाओ, तुम पर अब ये ज़रूरी है कि तुम ऊँट का दूध पियो, और तुम पर अब ये ज़रूरी है कि तुम हफ्ते के दिन काम पे जाओ। अब यहाँ से पता चलता है कि दीन का, शरीयत का मिजाज क्या है, शरीयत हमसे क्या मुतालबा करती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे क्या मुतालबा करते हैं। इससे पता चलता है कि शरीयत का क्या मिजाज है। शरीयत का मिजाज ये है कि अगर गैरों की रस्म हो और इस्लाम के किसी कानून के साथ, शरीयत के किसी उसूल के साथ, शरीयत के किसी नियम के साथ अगर वो न टकराती हो लेकिन हो गैरों की रस्म, तो इस्लाम फिर भी पाबंद करता है कि उन गैरों की रस्मों को तोड़ो। तो जो रस्में, जो तरीके गैरों के हैं लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं है, फिर भी इस्लाम उसकी पाबंदी के लिए इस तरह का गैरतमंद दीन है कि मेरे मानने वाला, इस्लाम में मानने वाला गैरों की रस्मों पर कायम ना रहे, ये इस्लाम का मिजाज है। तो आप मुझे बताएं कि जब गैरों का तरीका हो और हो भी शरीयत के खिलाफ, उस मामले में शरीयत का कितना सख्त हुक्म होगा। आज आप और हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते और इसके बारे में शरीयत में, आका अलैहिस्सलाम के फरमान में कितनी सख्त वईद आई है, कितनी सख्त वईद। अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है और तिरमिजी शरीफ में भी है और दीगर किताबों में भी हदीस पाक मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तसब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। क्या फरमाया? मन तसब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तसब्बहा बिकौमिन, यानी अगर किसी कौम की कोई इंसान मुसाबहत करे, मुसाबहत कहते हैं सरखापणु, एक जैसे काम करना, यानी उनकी रस्मों पर, उनके तौर तरीकों पर, जो उनके इबादत के तरीके हैं उन पर अमल करना, इसको कहते हैं मुसाबहत। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स जिस कौम की मुसाबहत इख्तियार करे, जिस कौम का तरीका, जिस कौम के रस्मों रिवाज को अपनाए, उस पर अमल करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तसब्बहा बिकौमिन, अगर कोई शख्स किसी कौम का तरीका, उसका मजहबी तरीका, उनके इबादतों का तरीका, उनके रस्मों रिवाज, उन पर अमल करे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहुवा मिनहुम, वो उन्हीं कौम में से है। कल कयामत के दिन उस बंदे का हश्र मुसलमानों वाला नहीं होगा, बल्कि जिस कौम की मुसाबहत इख्तियार की होगी, कल कयामत के दिन उसका हिसाब किताब भी उसी कौम जैसा होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है और आका अलैहिस्सलाम का फरमान ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा तो ये अकीदा है कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, ये आसमान फट सकता है, ज़मीन फट सकती है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता।
कभी गलत नहीं हो सकता। जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के बारे में कि ऐसे ऐसे क़यामत के वाक़ियात होंगे, यकीनन हमें ज़र्रा बराबर भी उसमें शक नहीं है। जो आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से बयान किया है कल क़यामत के दिन उसी तरीके से होगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस मामले में कितनी सख्त वईद बयान फरमाई, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी सख्त वईद बयान फरमाई कि जिसका तरीका इख्तियार करेंगे कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी कौम में से होगा, उसका हिसाब किताब, उसका सारा मामला उन्हीं कौम में से होगा। अब आप और हम सोचे जरा यहाँ ठहर करके कि आप और हमारे घर पे जब शादी का मौका आता है तब आप और हम कितनी गैरों की रस्मों को आप और हम थामे बैठे। कभी आपने और हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये रस्म कितनी खतरनाक है। आज मुसलमानों के घर पे जब शादी होती है, रात को जो डिस्को डांडिया का प्रोग्राम होता है, ये क्या मुसलमानों की रस्म है? क्या इस्लाम का तरीका है? इसके अलावा उन डांडिया रास में गरबे गाए जाते हैं, वो टेप पर, वो डीजे पर जो बजाया जाता है उसमें भजन और गरबे होते हैं। ये किसका तरीका है गरबों पर नाचना? मुसलमानों का या गैरों का? कभी आपने और हमने सोचा? कभी नहीं सोचा। हमें मौत की और आखिरत की फिक्र ही नहीं है। क्या हमें मर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जवाब नहीं देना? आपका और हमारा होगा क्या? आपके और हमारी नई नई नस्लों का क्या होगा? ये नई नस्लें हमें देख करके तो सीखेगी कि हमारे बाप दादा ने जो काम किया है वो हम भी करें। आज होता यही है ना, बहुत सी रस्में ऐसी है कि जिनके बारे में अगर बताया जाए कि ये रस्म क्या कि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, तो लोग जवाब यही देते हैं कि हमारे बाप दादा से हमने ये देखा है, हमारे बाप दादा बरसों से ये करते चले आ रहे हैं। तो हजरात याद रख ले कि कल क़यामत के दिन हमारे बाप दादा से भी हमें ज़्यादा उम्मीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हमें रसूलुल्लाह शफाअत करा के हमें जन्नत में ले जाएंगे। तब क़यामत के दिन हम रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे? हाँ, वो रस्म व रिवाज जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, वो रस्म व रिवाज भले हो, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो शरीयत के खिलाफ है, जो रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ है, उन रस्मों को आप और हम अपना कर किस तरीके से आप और हम जन्नत में जाएंगे? ठंडे दिमाग से सोचे। और आपने कोई जगह ऐसी आपने और हमने नहीं छोड़ी जहाँ गैरों के तरीके डाल नहीं दिए। हर जगह कुछ न कुछ आपने और हमने डाल दिए। शादी ब्याह के मौके पर उसमें भी डाल दिए। हमने तो मैयत में भी देखा है कि गैरों के तरीके उसमें भी डाल दिए। दरगाहों पर उसमें भी वली अल्लाह के नाम पर गैरों के तरीके डाल दिए। ऐसे उसूल बना लिए। आप कहेंगे वो किस तरीके के उसूल है? एक मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ एक मिसाल। अब बहुत सारी बिरादरी जो हमारी सुमरा बिरादरी में जो बहुत अलग अलग कुटुंब है, जैसे डोडिया कुटुंब है, डेला कुटुंब है, सवाण कुटुंब है, पतानी कुटुंब है। अब उसमें आप देखें हर कुटुंब में अलग अलग नियम। अब सवाण कुटुंब है, डेला कुटुंब है और वीची कुटुंब है, उनमें इस तरीके का है कि जो बच्चा पैदा होगा और जो बच्चे की शादी होगी, उन दोनों का एक एक घेटा फर्जियात करना है। नफल की बात नहीं हो रही। नफल अगर कोई करे बुजुर्गों की नियाज समझकर तो इसकी तो गुंजाइश है, इसको तो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर नफल समझ करके करे तो कोई नफल नहीं समझता सिवाय चंद समझदार लोगों के। ज़्यादातर लोग इसको फर्ज समझते हैं। क्या कहते हैं? फर्जियात करना होगा, फर्जियात। अब आप सोचे कि जो अमल शरीयत ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आप और हम पर फर्ज नहीं करार दिया, उसको अगर आप और हम फर्ज करार दे, ये भी शरीयत की मुखालिफत है, ये भी शरीयत के खिलाफ अमल है, ये भी हराम अमल है। न्याज़ें अगर बुजुर्गों की करनी है, नफल समझ करके करे, कौन मना करे? सवाब भी मिलेगा, लेकिन नफल समझ करके करे तो। लेकिन कोई नफल नहीं समझता। अब ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई ज़्यादातर लोग नफल नहीं समझते। ये चाहे कोई भी कुटुंब हो, मैं किसी एक का पर्सनल बात नहीं करता, मैं तो दीन का नियम बता रहा हूँ, शरीयत की बात बता रहा हूँ कि वो सारे लोग ये घेटे को क्या समझते हैं? फर्जियात करना होगा, मतलब फर्ज समझ लिया। अब याद रख ले, शरीयत में किसी भी अमल को आप और हम अपनी मर्जी से फर्ज नहीं करार दे सकते। अब ये टोपी पहनना सुन्नत है, इसको फर्ज करार नहीं दे सकते। कुर्बानी करना वाजिब है, उसको फर्ज करार नहीं दे सकते। दाढ़ी रखना बाज उलमा के नज़दीक सुन्नत मौक़दा है, बाज के नज़दीक वाजिब है, लेकिन किसी ने फर्ज करार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसके उसूल है।
जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बयान फरमाए, जो इमाम शाफई ने बयान फरमाए, इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान फरमाए, इसी तरह इमाम मालिक ने बयान फरमाए। इन बुजुर्गों ने उसूल बयान फरमा दिए हैं, कायदे बयान फरमा दिए हैं कि कौन सा अमल फर्ज होगा, कौन सा वाजिब होगा, कौन सा सुन्नत मौक़दा होगा, कौन सा मुस्तहब और नफल होगा। ये सारे कायदे और नियम इमाम आज़म अबू हनीफा ने बयान कर दिए। उन्होंने ये नियम बयान किया कि कोई भी अमल फर्ज उस वक्त हो सकता है जब उसमें दो शराइत पाई जाए। पहली शर्त यह है कि वो कतई सुबूत होना चाहिए, सुबूत में कतई होना चाहिए, और दूसरा कतयतु दलाला, कतयतु सुबूत व कतयतु दलाला, इस तरीके की अगर कोई दलील हो और उसमें अमल कोई बयान किया गया हो तब जाके वो फर्ज होगा। अब इसको आसानी से समझे, ये बात समझ में नहीं आई होगी, आसानी से समझे। कतई सुबूत, सुबूत में कतई होना चाहिए, इसका मतलब ये है उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि सिर्फ दो चीज़ें जो सुबूत में कतई है, जिससे फर्ज साबित होता है। वो कौन सी दो चीज़ें? एक तो कुरान पाक, कुरान पाक में जितनी आयतें हैं वो सारी की सारी आयतें सुबूत में कतई है। या तो कुरान में वो हुक्म होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, या तो हदीस मुतवातर में होना चाहिए। अब हदीस मुतवातर क्या है? वो हदीस का एक प्रकार है, एक किस्म है, और लाखों हदीसों में से हदीस मुतवातर सिर्फ सैकड़ों है। बाज़ उलमाए किराम ने इसकी 70 तक तादाद बताई है, बाज़ ने 200 तक बताई है। 1000 हदीसें भी मुतवातर नहीं है, हजारों नहीं, लाखों हदीसों में से सिर्फ 1000 से भी कम हदीसें ऐसी है जो हदीस मुतवातर है। तो फर्ज साबित करने के लिए हदीस मुतवातर का होना जरूरी है। या तो कुरान की आयत होनी चाहिए या हदीस मुतवातर होना चाहिए। हदीस मुतवातर के अलावा और कोई हदीस हो तो उससे फर्ज साबित नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आप और हम अजान में या अजान के अलावा जब भी आप और हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं, आप और हम क्या करते हैं? अंगूठा चूमते हैं और आंखों से लगाते हैं। तो ये जो अंगूठा चूमना है, ये कोई आपने और हमने या हमारे बुजुर्गों ने अपनी मर्जी से नहीं ये बयान कर दिया, बल्कि ये भी हदीस में मौजूद है। हदीस में अंगूठे चूमने का सबूत मौजूद है, लेकिन फिर भी वो फर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हदीस ज़ईफ से मनकुल है, और हदीस ज़ईफ में अगर कोई अमल आया हो तो वो मुस्तहब बन सकता है, नफल बन सकता है, लेकिन फ़र्ज और वाजिब नहीं बन सकता। हदीस ज़ईफ में जो भी अमल आया हो वो फ़र्ज वाजिब नहीं बन सकता। फ़र्ज बनने के लिए हदीस मुतवातर का होना ज़रूरी है या कुरान पाक की आयत का होना ज़रूरी है। अब मुझे बताओ, जो कौम ये कहती है, कोई भी परिवार हो, जो ये कहते हैं कि जो बच्चे का जन्म होगा या उसकी शादी होगी फर्जियत घेटा करना होगा, घेटा करना फर्ज है। अब फर्ज करार देने के लिए या तो कुरान की आयत होनी चाहिए या हदीस मुतवातर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सहाबी अपनी तरफ से भी अगर कह दे कि यह फर्ज है, फिर भी फर्ज साबित नहीं होता। या हदीस मुतवातर के अलावा जो अखबारुल अहाद है, हदीस ज़ईफ है या और कोई हदीस है, उसमें अगर आ जाए फिर भी फर्ज साबित नहीं होता। तो अब मुझे बताओ कि घेटा करना जो ये लोग कहते हैं कि यह फर्ज है, कहाँ से साबित हुआ? कुरान की कौन सी आयत है? सबूत में कतई तो कुरान की आयत है। कौन सी आयत है जिससे साबित हुआ कि सवाण कुटुंब को घेटा करना होगा, डेला कुटुंब को घेटा करना होगा, पतानी कुटुंब को घेटा करना होगा? एक आयत दिखाए या हदीस मुतवातर दिखाए। जब हदीस मुतवातर नहीं है, कुरान की एक भी आयत नहीं है, तो फर्ज हो कैसे गया? अपनी मर्जी से फर्ज नहीं होता। ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने सारे उसूल बयान कर दिए। अब आखिरी बात, फिर अपनी बात को मुकम्मल करूँ। दूसरी बात ये कि मुसलमानों पर, चाहे वो सुमरा बिरादरी हो, चाहे पिंजारा बिरादरी हो, चाहे सादात हो, चाहे फ़कीर बिरादरी हो, चाहे पठान बिरादरी हो, मेमन बिरादरी हो, कोई भी हो, नमाज कितनी फ़र्ज है? 5 वक्त की। ऐसा है कि किसी पर 6 वक्त की, किसी पर 4 वक्त की? नहीं। जिसने कलमा पढ़ा, जो अपने आप को मुसलमान कहे, उस पर 5 वक्त की। सही है मेरी बात? रोजे कितने फ़र्ज है? रमज़ान के। किसी पर ऐसा है कि मेमन बिरादरी को मुहर्रम महीने के, सुमरा बिरादरी को जिलहज महीने के? ऐसा तो नहीं है। जो भी मुसलमान है उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज। ज़कात कितनी देनी है? 100 रुपये में 2.5 रुपये। क्या इसमें ऐसा है कि मेमन बिरादरी को 3.5 रुपये, सुमरा को 2.5 रुपये, फ़कीर बिरादरी को 1.5 रुपये? ऐसा है? नहीं। सबका एक नियम। जो भी अपने आप को मुसलमान कहे, उसमें नमाज का भी एक ही नियम,
रोजे का भी एक ही नियम, ज़कात का भी एक ही नियम, हज का भी एक ही नियम, इस्लाम का जो भी उसूल है, शरीयत के जो भी नियम है, तमाम मुसलमानों के लिए एक, किसी के लिए इसमें कोई रुखसत नहीं। तो मुझे बताओ ये कुटुंब वाइज नियम किसने बनाए? इस कुटुंब को करना है, इस कुटुंब को नहीं करना। क्यों? इस्लाम का नियम तो सब मुसलमानों के लिए एक है, शरीयत का नियम तमाम मुसलमानों के लिए एक जैसा है। ये किसने बना दिए कि ये परिवार को ये करना, ये परिवार को ये करना, इसको ये नहीं करना? ये नियम किसने बना दिए? इसका मतलब ये नियम बाद की पैदावार है, बाद में किसी ने बनाए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं बनाए। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बनाए होते तो सिर्फ सवाल कुटुंब के लिए, सिर्फ पतानी कुटुंब के लिए, सिर्फ डेला कुटुंब के लिए ना होता, बल्कि मेमन के लिए भी होता, पठान के लिए भी होता, सादात के लिए भी होता, सबके लिए होता, जो भी नियम होता। इसका मतलब ये इस्लाम का नियम नहीं है, ये रसूलुल्लाह ने बयान किया वो नियम नहीं है, ये जो हमारे मसाइक ने, हमारे बुजुर्गों ने बयान किया वो नियम नहीं है। ये गैरों के पास से कहीं से नियम लिया है, इस्लाम का नहीं है तो कहाँ से आया? दूसरे कहीं से ही आया है। इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। घेटे की नियाज आप करें, नियाज का कोई इनकार नहीं है, लेकिन फर्ज समझ करके ना करें, नफल समझ करके करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी नियतों के साथ अगर करेंगे उसका सवाब भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो भी गलती हुई हो अपने कर्म से मुआफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर और आका अलैहिस्सलाम की शरीयत पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।